નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello students, this is part 2 of chapter 6 physical and chemical changes of standard 7th science. In the last part, that is first part, we discussed that broadly there are two kind of changes. One of them is physical and second one is chemical change. And then we discussed about some physical changes in which we perform three activities. In the first activity, what did we do? We make a piece of the paper and once again try to acquire the size of the paper. But size, see, there is not a change in the properties of the paper, but size में change हो गया है. ठीक है, दूसरी कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ था एक्सेप्ट साइज. सेकेंड एक्टिविटी में व्हाट डिड वी डू? वी कलेक्ट सम दैट डस्ट ऑफ चॉक, put some water into that, make a paste, and then after try to go for that in this for the shape of that chalk. तो चौक जो बनाई थी उसमें क्या हुआ था? उसमें भी शेप या साइज में चेंज हुआ था. तीसरी एक्टिविटी थी जिसमें कि व्हाट डिड वी डू? जो आइस पीसीस थे उसको हमने सनलाइट में रखा. सो देयर वाज ए कन्वर्जन ऑफ स्टेट. वी नो दैट देयर इज ए थ्री स्टेट ऑफ मैटर. देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर: गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. तो जो सॉलिड स्टेट में था आइस था, वो कौन से स्टेट में था? सॉलिड स्टेट में. फिर हमने उसको रखा अंडर द सनलाइट, तो दैट स्टेट हैव चेंज्ड टू लिक्विड. पानी बन जाता है, लिक्विड बन गया. फिर हमने क्या किया? वी केप्ट दैट वाटर इनटू फ्रीजिंग मिक्सचर. तो फिर से वो उसका स्टेट में चेंज हुआ और वो आइस बन गया. तो इट वाज थर्ड एक्टिविटी, isn't it? Now let's discuss fourth activity, activity 6.4, in which, see, before starting this you must be on the page number 59 in your textbook. तो अपने टेक्स्ट बुक में 59 पेज नंबर पे आ जाओ. एंड लेट्स डिस्कस activity 6.4, in which boil some water in a container. Take some water in a container, then boil it. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pen by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pen. Let me make you understand this. First of all, what you do? Take some water into the container. Okay, this is a water. और दूसरा क्या करना है? Now you should boil it. बर्नर को नीचे रखना है, ठीक है? Now what you will do? You should under the burner, so boil it. So what will happen? From the water will become vapor or steam. You will find some steam is coming out from the water. अब जो water में से वेपर बनती है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? That is evaporation. So you will find evaporation, the process of evaporation. अब आपको क्या करना है? Keep a inverted pen on it. तो मैं एक इन्वर्टेड पेन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं. दिस इज एन इन्वर्टेड पेन. ओके, और उसको होल्ड करना है. दिस इज एन इन्वर्टेड पेन ऑन दैट स्टीम. सो व्हाट विल हैपन? स्टीम विल बी टुगेदर इन दैट इन्वर्टेड पेन, एंड दैट steam or vapor will once again become water. You will find some droplets of water. And what is that process called? water vapor में से फिर से पानी बनना.
become water. Vapor become water. Change of state from gas. Water vapor is what? Gas. From gas it will become liquid, that is water. तो वो जो प्रोसेस है वाटर वेपर में से वाटर बनना, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन. Isn't it? We know that. So condensation process you will find, and you will find some droplets in the inverted pan. तो पहले पानी में से स्टेट चेंज हुआ, गैस हुआ, फिर से गैस में से स्टेट चेंज हुआ एंड वाटर हुआ, दैट इज लिक्विड. सो इट वाज द चेंज ऑफ द स्टेट. Okay, and that was activity 6.4. Now let's discuss activity 6.5. Now in this activity there is a question. क्या है? Be careful while handling a flame. Be careful while handling a flame. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end of the blade and gas on the gas stove. Wait for a few minutes. Do the color of tip of the blade change? अब इसमें क्या करना है? आपको एक हैक्सो ब्लेड लेना है, या तो नेल भी चलेगी. ओके, सपोज दिस इज ए हैक्सो ब्लेड. तो उसको क्या करना है? उसको होल्ड करना है विथ ए पेयर ऑफ टंग. अब इससे आपको यहां से होल्ड कर लिया, फिर क्या करना है? यहां से फ्लेम के ऊपर रखना है. होल्ड इट ऑन दी फ्लेम. तो क्या होगा? ये जो हैक्सो ब्लेड है वो गर्म होने लगेगी. इट विल गेट हॉट. अब जब हॉट हो जाएगी तो क्या होगा? उसका जो कलर है विल चेंज टू रेडिश कलर हो जाता है. आपको पता होगा, वो गर्म हो जाएगी, देन द कलर ऑफ द ब्लेड विल चेंज टू हॉट, मीन्स रेड कलर. ठीक है. अब वो एक बार वो हो जाता है, फिर आपको क्या करना है? फ्लेम बंद कर देनी है, और ऐसे ही वो जो ब्लेड है उसको कीप एज इट इज असाइड फॉर अ फ्यू मिनट्स. लेट इट बी 5 मिनट्स. तो क्या होगा? फिर से वो ठंडी हो जाएगी, है ना? ब्लेड विल बिकम कोल्ड. अब क्या होगा? उसका जो ब्लेड का कलर है जो पहले था वो फिर से हो जाएगा? नहीं, कलर में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. ठीक है. So this is the activity 6.5. Does it get back its original color? वो जो ब्लेड थी वो फिर से ओरिजिनल कलर में आ जाती है ना? ओरिजिनल कलर में नहीं आएगी. In activity 6.1 and 6.2 above, you saw that paper and piece of chalk underwent changes in size. जो एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 थी उसको हमने परफॉर्म किया था पेपर के ऊपर और चॉक ब्रश के साथ. तो उसमें क्या हुआ? साइज में चेंज हुआ. इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4, 6.3 में हमने क्या किया था? आइस क्यूब्स थे, उसको रखा था सनलाइट में, फिर से उसका आइस बनाया था. एंड 6.4 अभी जो हमने किया 6.4, दिस इज 6.4. Water changed its state. Water changed its state from solid to liquid और from gas to liquid. यहां से gas to liquid. ठीक है. तो उसमें क्या हुआ? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ अ मेटल, वो हुआ. फिर एक्टिविटी 6.5 जिसमें हमने क्या किया था? ब्लेड, हैक्सो ब्लेड को गर्म किया था. एक्टिविटी 6.5, द हैक्सो ब्लेड चेंज्ड कलर ऑन हीटिंग. ऑन हीटिंग द हैक्सो ब्लेड चेंज इट्स कलर. सो व्हाट वी conclude? Properties such as shape, size, color and state of substance are called its physical properties. जो सब्सटेंस के शेप होता है, साइज होता है, उसका कलर होता है, उसका स्टेट लिक्विड, गैस और सॉलिड, जो भी स्टेट होता है, those are known as the physical properties of the substance. ये सभी कैसी हुई प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टीज हुई. फिर a change in which a substance undergoes
properties is called physical change. हम कुछ चेंज अप्लाई करते हैं और उसकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, जैसे लिक्विड में से गैस होना, गैस में फिर से लिक्विड होना, फिर साइज का चेंज होना, दोज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आते हैं अगर, तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं. ठीक है, जहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं. फिर a physical change is generally reversible. A physical change is generally reversible. In such a change, no new substance is formed. Physical change जो होता है is a reversible change. उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. सपोज पहली एक्टिविटी में हमने पेपर को टीयर किया था, उसके छोटे छोटे पीस किए थे, लेकिन पेपर तो पेपर ही रहा ना, कोई वो सब्सटेंस नहीं बना था. ठीक है, अगर ब्लेड को गर्म करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लेकिन ब्लेड तो ब्लेड ही रही. ठीक है, ब्लेड में से कुछ और नहीं बना. ठीक है, तो क्या होता है, फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल. इन सच ए चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. नया सब्सटेंस कोई नहीं बनता है, लेकिन उसका फिजिकल साइज ऐसा कुछ भी चेंज होता है. ठीक है, so keep this in your mind, and in the next session we are going to discuss chemical change. Till then, watch this video 2 to 3 times so that you can understand properly these activities and you can understand physical change. Okay, thank you. Thank you for joining us. Take care of yourselves and we'll meet you in the next session. Thank you.